Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about our first Muslim philosopher, political philosopher, and that is Al-Farabi. So today's class is going to teach you all the ideas of Al-Farabi, one thing, and who can be sovereign. So far we have studied sovereignty and about the sovereign of Thomas Hobbes. We have talked about the philosopher of Plato and the forms of governments of Aristotle and the sovereign of Machiavelli in the form of prince. So who can be sovereign on the Muslim states? So today's class we are going to talk about this and Al-Farabi's theory of state and groupings, intellect, and not only that, today I am going to tell you how to use the knowledge of political science in other papers as well, how to apply the knowledge, the theories, and the knowledge given by these philosophers in other papers like Pakistan Affairs, Current Affairs, Essay, even in Gender Studies, in Islamiyat, in Arguments, and how to make these ideas, these theories, these philosophies your arguments for the statements or thesis statements that you give in the paper. Because most of the students, they think that political science is only limited to political science paper, and their focus remains on learning the ideas of political science for the sake of 200 marks or 300 marks when it is combined with constitutional law. Anyhow, this should not be the purpose of studying political science. Political science is a subject that helps you in all 12 papers at 1200 marks that you are striving to achieve. 1200 marks, remember, depend on the complete concept clarity command on political science, because it gives you knowledge regarding IR, international relations. It gives you knowledge of philosophy. You study different kinds and types of philosophers. It gives you knowledge of constitutions of the world. It gives you knowledge of the arguments, how to advance arguments. It gives you knowledge of political economy, political stability, parties, forms of governments, presidential, parliamentary form of government. And political science gives you knowledge of even the powers that the people use to subjugate other states, colonization, and it teaches you even globalization, nationalism, socialism, capitalism, authoritarianism, Marxism, fascism, Nazism. So all these things, these theories are not only relevant to political science subjects, but you can also employ these ideas in other subjects and papers as well to make your arguments strong, effective, persuasive. This also enhances and enables you to write effectively in current affairs paper, in Pakistan affairs paper, in philosophy, in essay. Remember, there is always an essay regarding democracy. If you have gone through, and last year it was about globalization, which itself is the topic of political science.
So that is why when you are studying political science, keep in mind the syllabus of all the subjects, keep in mind the theories of all the subjects, and then you study political science, and then compare and contrast the ideas of political science, political philosophers, and then try to employ all these ideas on other subjects as well. As I give you today, the idea of imperfect state and perfect state or ignorant state, clear? And then I applied the same theory of are the ideas of Al-Farabi on Pakistan's imperfection, and you can see that how beautifully it looks in the paper when the examiner checks such and such arguments, that you have taken the idea of Al-Farabi, perfect state, imperfect state, and then you applied it on the Pakistan conditions, sectarianism, religious fanaticism, fragile economy, political instability, and so on and so forth. So such ideas and such usability of all these ideas and theories and philosophies help you in constructing the arguments, and the arguments which are effective, the arguments which are impressive, the arguments which are impactful, right? So once you use these things in other papers, so definitely you will have excellent marks. But अफसोस की बात ये है that the students, particularly you guys, you have got talent. Most of you are science students, you have done MSc, some of you are MPhil, so it means that you all are intelligent, you all are highly qualified, but the problem is that you don't read, you don't try to understand, you don't listen to my lectures attentively, right? And you don't participate meaningfully in the weekly and monthly tests, and this is the problem. आप लेक्चर को गौर से सुने, एक दफ़ा सुन लिया फिर दोबारा से भी सुन ले, लेक्चर के सुनने के बाद आप उसके जो है पॉइंट्स नोट किया करें, उसके फौरन बाद आप जाएं बुक खोलें, किसी और सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज ना करें, बस आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बस उसको करने दे, जारी रखें, ठीक है? फिर पॉलिटिकल साइंस का बुक खोलें जो सजेस्टेड है, अभी हमने जो शुरू किया है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि आप लोग एक तो बुक खरीदते नहीं हो, जिसने खरीदा है उसने खोला नहीं है. सो नाउ वी हैव स्टार्ट दिस बुक, मुस्लिम पॉलिटिकल, लेट मी शो यू द नेम ऑफ द राइटर, मोहम्मद असलम चौधरी. अब लगता तो एक बहुत बड़ा बुक है अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन हमने इसमें से 5-6 फिलासफर्स को ही पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में उस पर क्वेश्चंस आते हैं और जो सिलेबस का हिस्सा है, तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है. हर एक बुक से, जैसे इससे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, उससे भी जो है बस वही 10-12 फिलासफर्स हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, 3 कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, मार्क्स है, बस इसी पर क्वेश्चंस आते हैं. इससे बाहर ने मिकावेली है, ठीक है, उसी पर क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते. मुसलमानों में जो है अल-फराबी है, इब्न खल्दून है, इकबाल है, इमाम गज़ाली है, अल-मवारदी है और अल-मल्क जो तूसी है. बस ये 6-7 ऐसे अशखास हैं जिसको आप लोग समझ लें, बस दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पेपर एंड 100% सक्सेस. अच्छा, तो बात कर रहा था कि आप किताब खोलें मेरी लेक्चर के बाद, उसको रीड करें और देखें कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा अब समझ आती हैं, फिर उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ अपने अल्फाज में लिखें, सेफ 2 में लिखें, जिधर भी लिखना चाहे, या अपने कोई रजिस्टर हो तुम्हारे पास उसमें लिखें, एक्सप्रेस करें. कोई क्वेश्चंस हो
तो फिर क्वेश्चन मुझसे किया करे, खुद भी आंसर ढूंढने की कोशिश करे, उसको हम कहते हैं सेल्फ करेक्शन। अदरवाइज मुझसे क्वेश्चन किया करे, मैं सबको जवाब देता हूँ, ठीक है, इन वन वे आर द अदर। लेकिन इनबॉक्स हो गया या व्हाट्सएप हो गया या एक ऐसी जगह पर क्वेश्चन करना जो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है कि इधर क्वेश्चन करें और आप लोग उधर ही क्वेश्चन करते हैं, तो अक्सर मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरे साथ ये आप लोगों का तकरीबन दूसरा महीना चल रहा है और आप लोगों को ये पता नहीं है कि क्वेश्चन करने की जगह कौन सी है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बड़े खूबसूरत आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ सुन ले, फिर डिटेल बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लेते हैं अल-फराबी को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उसका कर दूंगा, सही। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा ह्यूमन ग्रुपिंग्स के बारे में। ह्यूमन ग्रुपिंग्स का आप लोग जब समझ ले, फिर आता हूँ स्टेट किस तरह बना, जैसे थॉमस साहब ने स्टेट ऑफ नेचर वगैरह की बात की थी, इन लोगों ने भी की है, स्टेट किस तरह बना, ठीक है। फिर परफेक्ट स्टेट, इम्परफेक्ट स्टेट को भी हम लेंगे, साथ ही साथ में हमने डिस्कस करना है सॉवरन को, ठीक है, रईसुल अव्वल जिसको कहा जाता है इन कॉमन लैंग्वेज। हुमा खान, अब देखें ना, अब आपको ये समझ आ गया कि वो क्वेश्चन थ्रेड कहाँ पर है। अफसोस की बात है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीआर कौन है, वहां पर जाएं, सीआर से पूछे कि हम क्वेश्चन करें तो कहां पर करें। अब महीने बाद कोर्स खत्म हो गया और आप मुझसे पूछ रही है कि अफसोस होता है मुझे, इसी ग्रुप में है और बिल्कुल अनाउंसमेंट पर डाला हुआ है, टॉप पर है। जैसे आप इस ग्रुप में एंटर कर जाएं, बस उस उधर ही जो है आप लोगों को वो थ्रेड जो है क्वेश्चन आंसर का वो मिलेगा। अच्छा चलो, ये सारे आइडियाज हम डिस्कस करते हैं और आखिर में काइंड्स ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। अल-फराबी जो है ये अगर बाय बर्थ जो है तुर्क है, इसने बहुत ज़्यादा स्टडी की, फिलासफी भी पढ़ी, ग्रीक फिलासफर्स को भी पढ़ा, और मज़े की बात ये है इस शख्स की ग्रेटनेस ये है कि ये पहला मुस्लिम फिलासफर है जिसने पॉलिटिकल साइंस में काम भी किया और पॉलिटिकल राइटिंग्स हमें दे दी और जिसको हम पढ़ते भी हैं। इसको मुअल्लिम मिसानी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है द सेकंड टीचर, द सेकंड टीचर भी इसको कहा जाता है। अरिस्टोटल जो है दैट इज द फर्स्ट टीचर एंड ही इज द सेकंड टीचर, इसको सेकंड टीचर भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो छोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये क्या है, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेटोनिज्म एंड अरिस्टोटेलियनिज्म, आल्सो सूफीइज्म। सूफीइज्म को थोड़ा सा बीच में से निकाले, बस ये दो भी याद रखें कि ही इज द सिंथेसिस ऑफ अरिस्टोटेलियनिज्म एंड प्लेटोनिज्म, कि प्लेटोस के आइडियाज और अरिस्टोटल के आइडियाज का एक प्रोडक्ट या इम्पैक्ट जिस शख्स पर रहा है तो अल-फराबी पर रहा है, और इन्हीं ग्रीक फिलासफी की तालीमात को लेकर इसने फिर इस्लाम के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर भी अप्लाई किया और उसमें भी जो है फर्स्ट टाइम इसने फिलासफी को इस्लाम के साथ रिलेट भी किया। अच्छा, इसके काम जो है यहाँ पर लिखे हैं बुक में के मुख्तलिफ हैं। मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो है सियासतुल मदीनिया, और दूसरा जो है मदीनतुल फाजिला, द आइडियल सिटी जिसको कहा जाता है। आइडियल सिटी मतलब परफेक्ट सिटी। अब ये परफेक्शन क्या है, परफेक्ट सिटी कौन सी है, ये आप पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके नज़रियात जो है ग्रुपिंग के लिहाज से क्या है, ये इंसान और जानवरों के बारे में क्या कहता है। चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू अल-फराबी। अल-फराबी के मुताबिक फर्क क्या है इंसान और जानवर में। अल-फराबी कहता है there is one difference and that is intellect, या वो नाम देता है एजेंट इंटेलेक्ट। एजेंट इंटेलेक्ट क्या है, एजेंट इंटेलेक्ट फर्स्ट क्लास की तरफ से इंसानों को दिया है, जिसको हम रीजन कहते हैं, अक्ल कह ले, जो भी है, ठीक है। अब जो एजेंट इंटेलेक्ट दिया ये जानवरों के पास वो कहता है कि नहीं है।
अब एजेंट इंटेलेक्ट जन्म देता है इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस, जहानत। अब इंटेलिजेंस को जन्म दे दिया। इंटेलिजेंस क्या करता है? ये काम करता है, इट परफॉर्म्स मेनी एक्टिविटीज थ्रू विच वन गेन्स समथिंग विच इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू अल-फराबी गेन्ड इंटेलेक्ट। अब इसी एजेंट इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस को जन्म देता है। अब आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं जिससे एक समथिंग, कोई और चीज वजूद में आती है, और वो फिर उसको नाम देता है गेन्ड इंटेलेक्ट। वो इंटेलेक्ट, वो इल्म या वो जहानत या वो रीजन जो आप खुद हासिल करते हैं। एक खुदा ने आपको दी, अक्लमंद बनाया, दूसरा अकल आप खुद अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। जो खुदा ने दिया, फर्स्ट क्लास ने दिया, उसको कहता है कि ये क्या है, एजेंट इंटेलेक्ट है। और जो आप खुद अपनी मेहनत से हासिल करते हैं इंटेलेक्ट, उसको कहता है गेन्ड इंटेलेक्ट। ये दो टर्म्स जो है आप लोग याद रखें। फिर वो कहता है, आगे चलकर कहता है कि इंसानों के पास चंद ऐसी चीज है जो और भी मखलूकात से आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं। उसमें आपके पास रीजन आता है, उसमें आपके पास आता है पावर ऑफ कंटेंशन, पावर ऑफ फीलिंग्स, पावर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये सब आपके बुक में बिल्कुल एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक एक दो लाइंस में, कि पावर ऑफ रीजन से क्या मुराद है, पावर ऑफ थिंकिंग से, पावर ऑफ कंटेंशन से क्या मुराद है, पावर ऑफ फीलिंग्स, पावर ऑफ थिंकिंग। ये बिल्कुल एक्सप्लेन है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर इजी। फिर इन सब पावर्स में से वो कहता है कि सबसे ज्यादा पिक्यूलियरिटी जो है, जो बाकी मखलूकात के साथ है ही नहीं, वो है पावर ऑफ रीजन। लेकिन कोई इस्तेमाल तो करे ना। पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, इवन ओवरऑल लीडर्स तक, दे डू नॉट प्रोमोट द यूज ऑफ रीजन। वो रीजन, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपना जहन इस्तेमाल करें, और यही वो चीज आपको नहीं दी जा रही जो कुदरत ने आपको दी है, जिसकी वजह से आप बाकी मखलूकात से डिफरेंट है। बस आपको कहा जाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में बिल्कुल जरा भर भी शक नहीं, बस शक नहीं, बस चुप खामोश रहे, कोई क्वेश्चन ना उठाएं, बस आपका काम यहां पर खत्म हो गया। रीजन ना करे, जहन इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल हमारी जहनों पर ताले लगाए हैं। ये सिर्फ इस्लामियात या कोई और बात नहीं करो, हर सब्जेक्ट्स में। इवन अगर आप फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको भी इन लोगों ने एक खास मकसद के तहत जो है शामिल किया है, जो सही असल में रीजन, साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो है ही नहीं, कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान हिस्ट्री वो अलग चीज है, मुतालिया पाकिस्तान वो अलग चीज है, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती पाकिस्तान में। बाकी सही मानों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। साइंस का बायो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो इसी तरह फिजिक्स जब हम पढ़ते थे तो पहला चैप्टर जो है कुरानी आयात से शुरू होता। ठीक है, इन लोगों ने रीजन को खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म। और यही वजह है कि बस बर्बादी का सबब भी बना है। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम कहां से कहां जा रहे हैं। एनी हाउ, वो फिर ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। अब आते हैं ह्यूमन ग्रुपिंग्स के बारे में। ये शहजादा हमें बताता है कि इंसान जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, जिसे अरिस्टोटल ने कहा कि ह्यूमन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर। इसने भी वही बात उठाई कि ह्यूमन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें होती हैं और वो ज़रूरतें वो खुद अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की। अब एक फैमिली है, उसका काम फार्मिंग करना है, किसान है, तो वो तो ठीक है, अपने लिए खुराक तो तैयार कर सकती हैं, लेकिन कपड़े तो नहीं तैयार कर सकती। तो फिर उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, वो किसी टेलर के पास जाएंगे और उसके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे, रिलेशंस अच्छे बनाएंगे, और इसी तरह जो है सोसाइटी वजूद में आती है। फिर ये तो ह्यूमन ग्रुपिंग्स के बारे में कहता है। फिर ह्यूमन ग्रुपिंग जो है वो कहता है कि यही ग्रुपिंग जो है स्टेट्स बनाते हैं।
ठीक है। फिर वो स्टेट्स को जो है दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक को कहता है कि आइडियल स्टेट या परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट कौन सा होता है? परफेक्ट स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें तमाम के तमाम ग्रुप्स कोऑपरेट करते हैं। क्यों कोऑपरेट करते हैं? इसलिए कोऑपरेट करते हैं ताकि अमन से रहे, हार्मनी से रहे और खुशी हासिल करे। ये खुशी जो है यही सब कुछ है। मीना गुलाले क्या कहते हैं? सर इन इस्लाम अल्लाह सेज गो इन डेप्थ ऑफ ओशियंस एंड अबव मूविंग। हाँ, तो किस लिए? साइंस को डेवलप करने के लिए। वो तो आपको कहता है कि खुदा को तलाश हो इसमें, ठीक है। वो साइंस से रिलेटेड आयत नहीं है, आपका तर्जुमा कुछ और है और साइंस के बारे में कुरान कुछ नहीं कहता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि आप खुदा को ढूंढे, क्योंकि इस्लाम सच को मानता है। एंड फॉर ट्रूथ एंड ट्रूथ इज अल्लाह, कि सच जो है खुदा है। साइंस भी झूठ है और ये दुनिया भी झूठ है, ये कायनात, ये सब कुछ झूठ है, इसका वजूद भी झूठ है। अगर कोई सच है तो वो सिर्फ खुदा है। और वो आपको कहता है कि जिधर भी जाएं तो आप वहाँ पर खुदा को तलाश करें, ठीक है। ये आयत उस बारे में है, उस बारे में नहीं है कि साइंटिफिक इजादात करें। अदरवाइज मुसलमानों में बड़े बड़े फिलासफर्स होते और मदरसों से जो है आलिम की जगह साइंटिस्ट निकलते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, दिस इज़ नॉट इस्लामियात क्लास, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट जो है वो आपको बताता है किस चीज़ के बारे में, कि वहाँ पर आपको खुशी मिलती है। दूसरा वो कहता है कि इम्परफेक्ट स्टेट होता है वो ग्रुप्स जो कोऑपरेट प्रॉपरली नहीं करते, और अगर कोऑपरेट करते भी हैं तो खुशी के लिए नहीं करते, बस सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी, खाओ पियो सो जाओ, बस। खुशी उसका मकसद नहीं होती। और वो फिर कहता है कि ये जो बाहर एक छोटा सा स्टेट होता है, ठीक है, आइडियल स्टेट होता है, और उस आइडियल स्टेट के बाहर जो सड़कों पर लोग रहते हैं या छोटे मोटे गांव होते हैं वो फिर इम्परफेक्ट हैं। वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं रखते, उनके पास अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी नहीं होता, और इसी तरह ये लोग कोऑपरेट भी सही तौर पर नहीं कर पाते और खुश भी नहीं रख सकते। तो वो डिफ्रेंशिएट करता है परफेक्ट स्टेट और इम्परफेक्ट स्टेट से, ठीक है। और यही आइडियाज़ मैंने आज पाकिस्तान पर भी अप्लाई की है। एक बहुत ज़बरदस्त पैराग्राफ लिखा है, और मेरा मकसद पैराग्राफ लिखने का ये था ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज़ तक महदूद ना रहे, बल्कि आप यही आइडियाज़ पाकिस्तान पर अप्लाई करें, हमारे मुआशरे पर अप्लाई करें, पूरी दुनिया के मुआशरे पर अप्लाई करें, ठीक है। और अब आप उससे कुछ निकालें। जैसे वो बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने वो पैराग्राफ पढ़ लिया खुद ही आप समझ जाएंगे कि किस तरह मैंने सजेशंस दिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक इम्परफेक्ट स्टेट है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि इसमें कोऑपरेशन भी नहीं है और खुशी के लिए ये लोग जदोजहद नहीं कर रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल-फराबी पाकिस्तान एक इम्परफेक्ट स्टेट बन गया, ठीक। इसके बाद जो है क्या क्या है, सेक्टेरियनिज्म है यहाँ पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म है, यहाँ पर रिलीजियस जो है फैनेटिसिज्म है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी और सुन्नी और शिया और वहाबी इसमें डिवाइड हो चुकी है। एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कानून रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये एक इम्परफेक्ट स्टेट बन जाता है अकॉर्डिंग टू अल-फराबी। मेरे लिहाज से नहीं बल्कि अल-फराबी के लिहाज से। अब ये परफेक्ट किस तरह होगा? कोऑपरेशन की तरफ जाएं, इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ जाएं, सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी में ले आएं, ठीक है, बराबर मौके हो सबके लिए, और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, इन सबको ठीक करे, गवर्नेंस को ठीक करे, पाकिस्तान खुद एक परफेक्ट स्टेट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू अल-फराबी। अब मैंने इस छोटे से आइडिया को परफेक्ट और इम्परफेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ में चाहता तो उस पर एक पूरा ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन करूँगा ऐसा नहीं, बिकॉज इट विल टेक टाइम। और मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना था कि आप लोग किस तरह से जो है पॉलिटिकल साइंस का इल्म बाकी पेपर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसने बात की है कोऑपरेशन और यूनिटी कहाँ से आती है। ये भी एक क्वेश्चन तो है कि कोऑपरेशन और यूनिटी लाएं तो कहाँ से ले आए। तो इस पर फिर ये शख्स बात करता है और वो कहता है कि इसमें मौसम, क्लाइमेट चेंज, इसमें ज्योग्राफी,
कुछ नेचर और कुछ आर्टिफिशियल इंसानों के बैरियर्स भी होते हैं जो इंसानों के कोऑपरेशन के दरमियान जो है थोड़ा सा रुकावट बनते हैं। अब मिसाल के तौर पर मिसाल ले ले, वो तो ज़बरदस्त खूबसूरत बात है। वो कहता है कि इंसान, अब आप लोगों के रस्म रिवाज, उठना बैठना, इवन लैंग्वेज तक, ये क्यों है? ये तो आप एक ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और मौसम भी है। अब हम जो है इस गर्मी में जो है शलवार कमीज़ ही पहन सकते हैं, या जो आम पतले से कपड़े होते हैं काटन वगैरह ये मर्द पहनते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोट वगैरह या कुछ और ये तो नहीं पहन सकते। तो ये क्या है, हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कुछ इस तरह है। आप जाएं अमेरिका में, जाएं इंग्लैंड में, जाएं वहाँ पर इस सख्त गर्मी में भी लोग जो है कोट वगैरह पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे, मर्द औरत दोनों। ठीक है, तो एक उसका नेचर जो है। फिर क्या है, अब कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेशन अब तब ही आप लोगों के साथ कर सकते हैं जब आपके साथ वो थोड़े से करीब तो हो। अब मैं अमेरिका के साथ कैसे कोऑपरेट करूं? वो तो मुझसे 1000 मीलों दूर है और इधर अफगानिस्तान है साथ में। ठीक है, तो वहां पर आप कोऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो फासला भी हो गया। इसी तरह जो है इंसान की जो नेचर है इस पर भी ये हालात मुनहसर है। मतलब आपकी नेचर जो है इट इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय क्लाइमेट। अब गर्मी है तो इंसान ऐसे ही गुस्सा रहेगा। ठीक है, ये अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली के साथ है जहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों आर्टिफिशियली कंट्रोल होते हैं, एसी होते हैं वगैरह, ठीक है, गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों में घूमते फिरते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो गरीब है वो गर्मियों में तो, और ख़ास तौर पर जब रोज़ आए तो हर दिन उनके घर में जो है झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि मौसम जो है उसका जो है नेचर, उसका टेम्परामेंट्स, उसका पेशेंस जो है चैलेंज करता है। इसी तरह आपका खुराक भी हो गया। तो ये सब कहता है कि इंसान के दरमियान जो कोऑपरेशन वगैरह है वो भी डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है। कि दो भाई ज़्यादा मोहब्बत करेंगे जब उसका ताल्लुक किसी बड़ी फैमिली से हो, और दो भाई एक दूसरे से ज़्यादा नफरत करेंगे जो खुद ही जो है उसको अपने जान के लाले पड़े हो कि मैं तो इतना कमाता हूँ कि मैं अपने आप को संभालूँ, बीवी बच्चों को संभालूँ, या मैं अपने छोटे भाई या बड़े भाई की हेल्प करूँ, तो वो तो इतने नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह हर शख्स फिर अलहदा रहना चाहता है। तो यही सब बातें जो है अल-फराबी भी डिस्कस करता है कि ग्रुपिंग जो है या ह्यूमन कोऑपरेशन और यूनिटी के ऊपर जो थोड़ी सी चिक रहती हैं वो मौसम की भी रहती हैं, वो जियोग्राफी की भी रहती हैं, मतलब जगह का चेंज होना। ठीक है, मेरे दोस्त है उसका ताल्लुक मिसाल के तौर पर चतराल से हैं, तो अब मैं उसके साथ कैसे कोऑपरेट करूं? तो जो मेरा पड़ोसी होगा उसके साथ आसानी से कोऑपरेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर वो मुझे रात को भी बुलाए तो मैं उसके खिदमत के लिए हाजिर हूँ, बिकॉज वी कैन कोऑपरेट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, द नियरनेस वी हैव विद ईच अदर। लेकिन जो मेरे दोस्त दूर हैं उसके साथ तो कोऑपरेट नहीं कर सकता। एनी हाउ, ये अंडरस्टैंडेबल बातें हैं। अब आते हैं, इसका एक नज़रिया है कि इंसान ने स्टेट क्यों बनाया, कहाँ से आया। तो ये आइडिया देता है म्यूचुअल रिनंसिएशन राइट्स का। इसने भी थॉमस हॉब्स की तरह कहा कि कुछ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस था, या आप उसको कहते हैं इग्नोरेंट स्टेट था, जिसको थॉमस हॉब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर। और कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर थे, कुछ कमज़ोर थे, लड़ाई झगड़े होते थे, और ताकतवर जो था कमज़ोर को ख़त्म करना चाहता था। सही। फिर होता क्या है कि लोगों ने कॉम्प्लेक्स से या लड़ाई झगड़े से तंग आकर कहा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और फिर इन लोगों ने ये कहा कि मैं अपनी ज़ात के कुछ राइट्स कुर्बान करता हूँ इस बात पर कि आप मेरे राइट्स का ख्याल रखें, आप मुझे प्रोटेक्ट करें, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। और इस तरह जो है फिर स्टेट वजूद में आया और सॉवरेन का कंसेप्ट भी वजूद में आया, जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा। थॉमस हॉब्स से पहले, सदियों पहले इस शख्स ने ये बात कही थी। एनी हाउ, थॉमस हॉब्स ने उसको सिस्टमेटाइज किया और उसको स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल रिनंसिएशन राइट्स का नाम दिया। ठीक है,
अब आते हैं हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कैसा होना चाहिए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें प्लेटो के साथ, तो प्लेटो ने तो कहा था कि स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो फिलासफर होना चाहिए। फिर प्लेटो ने जब देखा कि फिलासफर तो आम जिंदगी में इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो फिर उसने एजुकेशन सिस्टम का एक नज़रिया दिया कि जनाब एजुकेशन सिस्टम हमने ऐसा बनाना है जिससे 50 साल बाद हमारे पास फिलासफर आए, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए उसने अपना स्टेट का नज़रिया मजबूत किया। इसी तरह इस शख्स ने भी उसी आइडिया को उठाया, लेकिन इसने जो है कोई स्कूल या कुछ नहीं दिया। इसने कहा कि खुदा की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके पास क्वालिटीज़ हैं कि उस कंक्लूजन कर सकते हैं या डिडक्शन कर सकते हैं, एक अपनी जहन को इस्तेमाल करके एक फैसला ले सकते हैं। फिर ये लोग जो है कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कंक्लूजन तो कर सकते हैं, दे कैन ड्रा द कंक्लूजन बट दे कैन नॉट कन्वे द कंक्लूजन टू अदर्स, कि वो कंक्लूजन तो ड्रा कर लेते हैं कि लेकिन अपनी बात दूसरों तक मनवा नहीं सकते या पहुंचा नहीं सकते। तो ये लीडर जो होता है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद भी जो है उसमें रीजन हो, अकल हो, साउंड माइंडेड हो और अपनी बात फिर दूसरों को भी समझा सकता हो, पहुंचा सकता हो, कम्युनिकेटिव स्किल्स भी हो उसमें। लेकिन ये कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिडक्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैसेज अच्छी तरह कन्वे कर सकते हैं लेकिन डिडक्शन खुद नहीं कर सकते। फिर ये कहता है कि एक लीडर के पास अगर डिडक्शन की क्वालिटी है लेकिन कन्वे करने की क्वालिटी नहीं है, या कन्वे करने की क्वालिटी है डिडक्शन की नहीं है, तो फिर उसका एक सुपीरियर बन जाए और एक उसका इंफीरियर बन जाए। सुपीरियर जो है बात कन्वे करेगा, इंफीरियर उसका हेल्प करेगा। फिर इस सुपीरियर और इंफीरियर के आगे नीचे जो है और सुपीरियर और इंफीरियर हो और इसी तरह एक चेन बना रहे और अपना जो निज़ाम है मुल्क का वो चलाते रहें। एनी हाउ ये तो उसके लीडरशिप की क्वालिटीज़ की बात आ जाती हैं। अब आते हैं वो सावरन की बात करता है, तो सावरन के आइडियाज़ अगर आप लोगों ने आस्टन सही से पढ़ा है, मैंने आप लोगों को इवन मंथली टेस्ट में उसको शामिल भी कराया था और उसका कोटेशन भी यही दिया था कि आस्टन कहता है कि सावरन एक ऐसा शख्स है जो किसी की बात नहीं मानता, हु डज नॉट एक्सेप्ट द कमांड्स ऑफ अदर्स बट ही हैज द क्वालिटी टू मेक अदर्स एक्सेप्ट हिज कमांड्स। इसके पास ये क्वालिटी होती है कि लोग इसकी बात माने, लोगों पर बात मनवा सकता है लेकिन खुद किसी की नहीं मानता, वो सावरन है। अल-फराबी भी कहता है कि जो सावरन होगा स्टेट का उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी की कमांड्स को ना माने। जैसे खुदा है, खुदा के जो कंसेप्ट है, जैसे अल्लाह है, वो किसी की कमांड्स नहीं मानता लेकिन खुद दूसरों को हर किस्म के कमांड्स देता है। तो वो कहता है कि ज़मीन पर जो है, ज़मीन पर खुदा का नायब जो है वो तो सावरन होता है, तो वो इसी खुदा की जो क्वालिटी है उसको उठाए। ये मेरे अपने अल्फाज है, ठीक है, इवन उसने भी लिखे हैं लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में लिखा है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि वो खुदा की जो क्वालिटी है वो अपनाएं। जैसे खुदा जो है कमांड देता है तो इसी तरह ज़मीन पर सावरन जो है दूसरों को कमांड देगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है आस्टन का भी है और यही कॉन्सेप्ट इसने भी दिया है। फिर इसने रईसुल अव्वल उसको कहा जाता है सावरन को इसकी ज़ुबान में, अल-फराबी की ज़ुबान में, और उसके लिए इसने 12 क्वालिटीज़ दी हैं, 12 क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। एक क्वालिटी ये है कि ही मस्ट पोजेस परसुएशन एंड इमेजिनेशन। उसमें परसुएशन मतलब जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि परसुएसिव राइटिंग, कन्विंसिंग राइटिंग, तो वो परसुएशन आप लोगों में भी होनी चाहिए और यही लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अगर आप एक राइटर को या एक एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे, CSS ऑफिसर बनेंगे, तो अवाम को किस तरह कन्विंस करोगे, ठीक है। तो ये परसुएशन जो है कम्युनिकेटिव स्किल लाजमी है पेपर के लिए भी, उसके साथ ग्रामर और लैंग्वेज एक्यूरेसी भी लाजमी है। एनी हाउ ये लाजमी है कि वो परसुएसिव हो। दूसरा, ही मस्ट बी फिजिकली साउंड फिट, बिल्कुल फिजिकली भी साउंड हो, फिट हो, ज़बरदस्त हो, उसके पास जो है ज़बरदस्त विजन्स हो, उसके पास जो है शार्प मेमोरी हो, उसके पास जो है आर्गुमेंट्स देने के तरीके आते हो उसे,
और अपनी बात चंद अल्फाज में लोगों को समझा सकता हो। इतने बड़ी बड़ी तकरीरों की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। उसके पास लोगों को कन्वे करने के जो है स्किल्स हो कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। मोहब्बत भी उसमें हो, नफरत भी हो, लेकिन मोहब्बत से लोगों को समझाए, नफरत से नहीं। अच्छा, फिर कहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म भी होना चाहिए, जाहिल लोग जो है हुक्मरान ना बने। और फिर कहता है कि आइडियल रईसुल अव्वल जो है वो तब प्रूफ करेगा जब उसमें जो है अपनी ज़ात को कंट्रोल करने की सलाहियत हो, जैसे गुस्सा कंट्रोल कर सकता हो, जैसे कि पैशंस कंट्रोल कर सकता हो। अगर उसके कोई जिस्मानी वो है क्या कहते हैं ख्वाहिशात है, उसको कंट्रोल कर सकता हो। जो अपनी ज़ात को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और उसमें लव ऑफ ट्रूथ हो, हमेशा सच की तलाश में लगा हुआ हो, और साथ में फिर बताता है कि फियरलेस हो, डर उसमें ना हो। अब सवाल ये है कि इज इट पॉसिबल टू पोजेस ऑल दीज 12 क्वालिटीज, के एक ही शख्स में इतने ज्यादा जो है क्वालिटीज हो? तो जवाब है नहीं, ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि उसमें 12 के 12 क्वालिटीज हो। फिर वो कहता है अल फराबी, अगर उसमें 3-4 भी हो सो दैट इज मोर देन इनफ, वो बहुत ज्यादा है फिर, ठीक है। तो अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर एक ऐसे शख्स को ढूंढे जिसकी परवरिश किसी सवरन के घर में हुई हो, वो भी नहीं मिलता तो फिर जो है 2-3 लोगों को सवरन बना दो, और उसमें से एक हाकिम हो, मतलब उसमें हिकमत हो, और उस शख्स को जो है शामिल करें ताकि अच्छी तरह से हुकूमत कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो फिर कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने करनी है या बनानी है सो दैट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट पर होगा, ठीक है। मेरिट पर होगा तो ये लोग काबिल भी होंगे, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। मीना गुलाले कहता है कि ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब क्या है? अच्छा, तो बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन है तो बस वो कहता है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो मेरिट की बुनियाद पर हो, जो क्या कहते हैं फेवरेटिज्म उसमें ना हो। अच्छा, और फिर साथ में प्लेटो की तरह ये भी कहता है कि जो सावरन होता है, जो रईसुल अव्वल होता है, इसकी मिसाल जो जिस्म है उसमें हार्ट की तरह है, दिल की तरह है। जिस तरह दिल पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और एक अहम किरदार अदा करता है, तो इसी तरह स्टेट को भी ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ कि वो काइंड्स ऑफ स्टेट में क्या कहता है, बस इसको फिर ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो कहता है कि जब स्टेट नहीं होता फिर लोग क्या करते हैं, स्टेट जब वजूद में आता है तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। एक वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी है, इसको हम कहते हैं ज़रूरिया। अब जो ज़रूरत की बुनियाद पर एक ऐसा स्टेट है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं मज़ों के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कि जैसे उसे खुराक चाहिए, कपड़े चाहिए और एक छोटा सा घर चाहिए, ठीक है। बस ये उसकी ज़रूरतें होती हैं। और इस स्टेट, ये एक ऐसा स्टेट है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अच्छा, ही सेड सेलेक्ट फ्यू पीपल एंड हिज थ्योरी रिजेंबल, बिल्कुल फिर उस सेंस में ठीक है। सिंस स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो ज़रूरिया वो स्टेट है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब ये ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसको आपको घर भी मिल गया, बच्चे भी मिल गए, कपड़े भी मिल गए, खुराक भी मिल गया। अब ये स्टेट क्या करता है, ये थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता है और उसको कहता है वाइल्ड स्टेट। वाइल्ड स्टेट जो है उसको कहा जाता है जिसमें लोग दौलत की तरफ भागते हैं, ताकि ये लोग दौलत को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अकमुलेट करें और अमीर बन जाए। फिर कहता है कि ये भी हासिल कर लिया, फिर बेस एंड डिस्पेकेबल स्टेट की तरफ लोग जाते हैं। और वो स्टेट जब आता है तो वो ये है कि इसके पास खुराक वगैरह ये सब कुछ भी आ गया, दौलत भी आ गया। अब ये कहते हैं कि अब क्या करें इस दौलत के साथ, तो वो बड़े बड़े पार्क्स की तरफ जाते हैं, गेम्स की तरफ जाते हैं, पास टाइम एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, वगैरह वगैरह। सही है। अब आप लोग खुद देख ले कि आप लोग किस स्टेट में हो, अभी किस हालत में हो, ठीक है। अभी तो स्टूडेंट है, आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप
CSP बने, फिर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी दौलत भी, चलो सैलरी वगैरह अच्छी हो गई, दौलत कमा लें, 10-12 साल बाद जो है जब हालात ठीक हो जाएं, फिर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करेंगे कि अब जो है मेरी हालत भी ठीक हो गई, चलो अब घूमने फिरने लगते हैं, दुनिया को डिस्कवर करते हैं। जब उसको भी डिस्कवर किया जाता है तो स्टेट की हालत भी इसी तरह है अकॉर्डिंग टू अल-फराबी। फिर वो कहता है कि डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी की बात क्या है कि फिर लोग जो है उसके पास पैसे भी होते हैं, ऐशो इशरत आराम सब कुछ होता है, तो फिर ये लोग आनर की तरफ भागते हैं, बड़े बड़े ओहदों की तरफ, आनर की तरफ, इज्जतों की तरफ, निशानी हैदर मुझे दे दे, मुझे जो है एक अच्छे सिटीजन का नाम दे रहे, ठीक है। तो जब आपके पास आप भी CSP बन जाए, अभी ज़रूरती स्टेज पर हो, बन गया, पैसे आ गए, फिर आखिर में आप आनर्स चाहते हो कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, चलो एक किताब लिख लेते हैं, एक स्कूल खोल लेते हैं, एक फलाही इदारा खोल लेते हैं, ठीक है। फिर स्टेट्स उस आनर्स की तरफ भागते रहते हैं ताकि उसे आनर्स मिले, ठीक। और मुख्तलिफ लोगों को, अब डॉक्टर जो है फरीदून कल जो है वो वफात पा गया, तो पूरा स्टेट जो है खफा था कि ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया था और उसको जो है पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से नवाजा भी था, ठीक है। अब एक शख्स है, उसने साइंस पढ़ा और उसने कोई नई ईजाद की, ठीक है, तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला, जैसे अब्दुल सलाम को मिला, मलाला को मिला, तो ये फिर ऑनर्स की तरफ ये लोग भागते हैं। एक चीज़ वो है टायरनी। एक वक्त आता है कि लोग जो है, इसमें एक बादशाह होता है जो जाबिर होता है, टायरनी की तरफ जाते हैं, और टायरनी से थोड़ा सा ये डिस्पॉटिज्म को डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। वो कहता है कि टायरनी जो है, इसमें जो शख्स बेटा होता है, जो सावरन बेटा होता है, वो दूसरों की मदद भी करता है, पैसे भी कलेक्ट करता है, और लोगों की प्लेजर भी जो है उसका ख्याल भी रखता है। जबकि डिस्पॉटिक स्टेट या डिस्पॉटिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें एक शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की सोचता है, लोगों को भी कत्ल करता है, पैसे भी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगता है, अवाम के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, ठीक है। इसी तरह फिर वो कानून को भी तोड़ता है, आइन को भी तोड़ता है, तो वो डिस्पॉटिक बन जाता है ऐसा स्टेट। अच्छा, फिर एक ऐसा स्टेट आता है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सब लोग बराबर होते हैं, ठीक है, और इक्वालिटी होती है, और स्टेट का जो फोर्स है या फियर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो एनी हाउ ये सब चीज़ें जो है वो बताता है काइंड्स ऑफ स्टेट में। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, बस 1-2 पेज और भी है आप लोगों की किताब में, लेकिन वो है कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल साइंस में। तो जो बातें पढ़ी ये सब उसकी कंट्रीब्यूशन है, सब लिख दे फिर पेपर में, अगर कंट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन आता है। अमूमन नहीं आता लेकिन फिर भी। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग मुझसे रेलिवेंट ग्रुप में करें। सो आई हैव सम वर्क टू डू, इसलिए आप लोगों का क्वेश्चंस, लाइव क्वेश्चन नहीं लूँगा। फिर जो ग्रुप है वहाँ पर जो पोस्ट मैंने दिया है उस पोस्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं आज के लेक्चर के लिहाज से। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।